Good evening, everyone, and welcome to BYJU'S Exam Prep. How is everyone doing? And I hope I'm clearly audible and visible to everyone watching me live as well. I hope you've been working hard. I hope you've been solving RCs. We do not have a lot of time left for our examination, and thus, in today's session, we're going to be talking about ऐसे कौन से क्वेश्चन टाइप्स हैं जो बिल्कुल 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 करने चाहिए आपको, उन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे. That is something I can guarantee you on. So, good evening, everyone. That's what we're going to be doing in the class today. Agenda क्या है सेशन का आज? Agenda सेशन का है we discuss those types of questions which I highly recommend you work on, and this is exactly what is going to be coming in the actual examination. इसी में से आएगा examination में. थोड़ी सी अप्रोच की बात भी करेंगे, देखेंगे, डिस्कस करेंगे क्या अप्रोच होना चाहिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. उन क्वेश्चन टाइप्स को डिस्कस करेंगे और किस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे. तो दैट्स गोइंग टू बी द एजेंडा ऑफ द सेशन टुडे. Let's begin without any delay. The first and most important kind of question, but उसके पहले मुझे एक बार everyone can watch and see me clearly. तो सबसे पहली चीज देखो, आई एम श्योर आपने कभी मॉक टेस्ट दिए हैं, आपने कभी सैंपल पेपर्स देखे हैं, आपने एक्चुअल क्लैट पेपर्स देखे होंगे. आज के सेशन में जो भी मेरे रिकमेंडेशंस है आपको, अगर मैं आपसे कहती हूँ मेन थीम क्वेश्चन पे काम करो या इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन पे काम करो या एक्सवाइजी टाइप ऑफ क्वेश्चन पे काम करो, all of this comes up with a lot of backing of analyzing a lot of previous year papers, analyzing the sample papers as well. तो जो भी मैं आपको सजेशन दूंगी ये बहुत सारे एनालिसिस के बाद आया है. और one thing I guarantee you, if you specifically work on your approaches to get these questions correct, there are very very strong chances कि आप 80% questions easily correct कर सकते हैं, considering आपने उन type of questions पे मेहनत करी है. तो good evening everyone. तो सबसे पहला and I think सबसे ज्यादा important type of question जो आता है, that is going to be the main theme question. If I have 25 or roughly 24 questions that come up, assumption मेरा है 24-25 questions आएंगे इंग्लिश में क्लैट में, out of 25 there are very very strong chances आपको at least 5 questions directly main theme पूछते हुए मिलेंगे. You'll get direct 5 questions on asking you the main theme. अब ये कई तरीके से दिख सकते हैं आपको. They can come up like which of the following is the main idea of the passage, what is the primary purpose of the passage, the author is primarily concerned with, or what is the argument of the passage, which of the following describes the content of the passage. Title based question भी आपसे directly main idea पूछेगा. Now before I move ahead and tell you the other kind of questions, मैं ना इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूंगी, क्योंकि ये आप अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए आपकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को आंसर करने की जर्नी बहुत आसान हो जाती है अगर ये आपको समझ में आता है. तो अंडरस्टैंड समथिंग हियर, जब भी आप एक आरसी पढ़ते हैं, इफ यू इन्वेस्ट टाइम इन रीडिंग दिस, आपके पास अगर ये क्वेश्चन आए या ना आए उस पैसेज में, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए. दैट इज समथिंग आई प्रमोट. Why? Because there are many questions that we're going to be discussing in today's session, the types that can be easily answered if you get this correct, चाहे ऐसे direct questions आए या ना आए. तो प्लीज अगर आप नोट्स बना रहे हैं, ये लिख लीजिए कि अगर मैं एक पैसेज को पढ़ने में टाइम दे रहा हूं ना, अगर मैंने 2 मिनट लगा के वो पैसेज पढ़ा है तो मुझे इसका आंसर पता होना चाहिए. दैट इज अल्टीमेटली ये पूरा पैसेज का थीम क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है, इन अ नटशेल इसकी समरी क्या है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन एलिमिनेट a lot of options in a lot of types of questions. On the contrary, there are chances, really high chances, that you will get at least one such question in every passage. So अगर 5 पैसेज आते हैं, there are very likely chances कि 5 direct questions आपको मेन थीम में जरूर मिलेंगे. Do you guys get this? अच्छा मुझे ये बात बताओ, आप लोगों ने मेरे मेन थीम बेस्ड क्वेश्चंस की क्लास देख ली ना, जो मैंने लास्ट वीक 2 क्लासेस ली थी. आई होप यू seen those videos where I made you understand आपको मेन थीम क्वेश्चंस आंसर कैसे करने हैं. देखिए आप लोगों ने वो क्लास,
नहीं देखी तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ इट, दोनों पार्ट उसी ऑर्डर में आपको देखने हैं। एक क्लास मैंने लास्ट फ्राइडे को ली थी विच इज पार्ट 2, और उसके प्रीवियस वीक में मैंने पार्ट 1 ली थी। पहले पार्ट 1 देखेंगे और फिर पार्ट 2 देखेंगे। ओके, इफ यू हैव क्वेश्चंस आप कमेंट कर सकते हो उस वीडियो के नीचे। आई विल मेक श्योर मैं आपको डिटेल में समझाऊं, आपके क्वेश्चंस का आंसर दूं। तो ये पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन आंसर करना मुझे सेकंड टाइप ऑफ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन को आंसर करने में हेल्प कर सकता है कि नहीं। द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, अच्छा बाय द वे इसका अप्रोच क्या होना चाहिए आपका, अगर आपके पास एक मेन थीम टाइप क्वेश्चन आ गया, उसको सॉल्व करने के लिए few recommendations, always pay attention to the first and last few lines. Usually आपका आंसर मेन थीम का यूजुअली आपके फर्स्ट 2 लाइंस लास्ट 2 लाइंस के कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक है। और हमेशा हम एक बिगर पिक्चर देखते हैं। आप लोगों को ये वर्ड फ्रेज तो पता ही होगा, मेरा फेवरेट है। सो हम हमेशा बिग पिक्चर देखते हैं। बिग पिक्चर का मतलब क्या है, एक ऐसा ऑप्शन जो पूरे पैसेज को एनकम्पास करके मुझे आंसर बताएगा, नॉट ओनली वन फ्रैगमेंट ऑफ इट बट द एंटायर इमेज, अ बर्ड्स आई व्यू। ओके, सो हमें बिगर पिक्चर। अच्छा, नितिका सेज वेयर कैन आई प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस। नितिका सबसे पहले तो अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, understand the approach, and where to practice. My recommendation of sources, I'll write that down on my slide right here for everyone who has not enrolled for our classes. आपके लिए मैं कुछ फ्री सोर्सेज रेकमेंड करती हूं। सबसे पहला फ्री सोर्स है, सबसे पहली चीज जो प्रायोरिटी पे आपको करनी चाहिए, दैट आर ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लस ऑल द सैंपल पेपर्स जो कंसोर्शियम रिलीज करता है। तो 2020 से 2023 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लैट और एलिट के और सारे सैंपल पेपर्स जो कंसोर्शियम ने रिलीज करे हैं, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेकंड, आफ्टर डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आप अगर एनरोल्ड हैं तो हमने जो बुक्स आपको प्रोवाइड करी है वो हमारे ऐप में जो टॉपिक टेस्ट्स हैं आप वो कर सकते हैं, नहीं आपको करना है। एंड थर्ड, अगर आपने ये कर लिया उसके बाद भी आपको कुछ चाहिए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ कैट भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्दो ये देखो डिफिकल्टी लेवल ऑफ कोर्स इसकी काफी हाई होगी कंपेयर टू क्लैट, नॉनदलेस अगर आपको फ्री सोर्सेज चाहिए आप इसको भी रेकमेंड कर सकते हो, बिकॉज ऑल ऑफ दीज सोर्सेज हैव ऑथेंटिक आंसर कीज, ठीक है। नहीं तो अगर आप कोई और मैं आपको बुक रेकमेंड कर दूं और वहां गलत आंसर की निकल जाएगी तो यू विल बी इन ट्रबल। आपको नहीं पता फिर आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या सही है क्या गलत है। तो आई विल ओनली रेकमेंड दो सोर्सेज जहां आंसर की ऑथेंटिक हो सकती है। आप प्रीवियस ईयर कैट पेपर्स या GMAT पेपर्स या LSAT पेपर्स से भी सॉल्व कर सकते हो। These were the sources. So main theme questions, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका अप्रोच बिगर पिक्चर और फर्स्ट फ्यू लाइन्स एंड द लास्ट फ्यू लाइन्स। टाइप 2, क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्ट और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये कौन से क्वेश्चंस होते हैं? ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको स्कूल के RCs में दिखते हैं। एक लाइन में वो लिखा हुआ है, आपको वो लाइन पढ़नी है, वो डेटा निकाल के क्वेश्चन के ऑप्शन में मार्क कर देना है। कौन से साल में वॉर हुआ? पैसेज में जाएंगे, देखेंगे 1991 में वॉर हुआ, ऑप्शन में आएंगे, देखेंगे 91 किस में लिखा हुआ है, वो ऑप्शन मार्क कर देंगे। क्या क्लैट हमको डायरेक्ट या फैक्चुअल क्वेश्चंस देगा? बिल्कुल देता है और बिल्कुल आते हैं, और इनको मैं बहुत फॉन्डली लो हैंगिंग फ्रूट बोलती हूं क्योंकि इनको प्लग करना बहुत आसान होता है। अप्रोच to get direct and fact-based questions correct. Always read the question, go back to the passage, find out the line where the answer would be written. Reread the line. It would barely take you 5 to 10 seconds to reconfirm that answer, but ensure you one additional mark. क्योंकि अगर आपने पैसेज पढ़ा है तो आपको पता होगा वो कौन सी लाइन है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे नहीं है इंग्लिश में, आपका इंग्लिश पुअर है, तो भी मैं हाईली रिकमेंड करती हूं ये क्वेश्चन आपको जरूर मार्क करना चाहिए, क्योंकि ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। यहां कोई प्रोसेसिंग नहीं मांगता एग्जामिनर आपसे, इट्स डायरेक्टली रिटन इन द पैसेज। वो बैक टाइम आपको पिक करके ऑप्शन में देखना है कि कहां वो चीज लिखी हुई है, कौन कौन सी चीजें आपको हेल्प करेंगी मेंटल इलनेस से डील करने में। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। देखो पैसेज में कौन कौन सी चीजें मेंशन्ड है जो आपको मेंटल इलनेस से डील करने में हेल्प करेंगे। ऑप्शन में आओ, रिकन्फर्म करो और उसको मार्क कर दो।
सो आप स्ट्रांग इंग्लिश में, एवरेज है, वीक है, ये क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डायरेक्टली रिटन लाइक योर स्कूल टेक्स्ट बुक्स। स्कूल टेक्स्ट बुक्स में लिखा होता है डायरेक्टली, राइट? या स्कूल के आरसी जो आते हैं आपके सीबीएसई में, उनमें डायरेक्टली लिखा होता है। दिस इज वन ऑफ दोज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। They can appear in various formats. They can look like which of the following is true, which of the following is false. Alternatively, वो ऐसे भी दिख सकते हैं जैसे which of the following is mentioned in the passage, which of the following the author will agree with. ये सारी चीजें लिखी भी होंगी डायरेक्टली। आपको क्वेश्चन को देखो, ये जो मैं क्लास ले रही हूँ, where I'm telling you different types of questions, I want you to identify these types when you solve an RC. Why? Because with every type, your approach changes. So if I say go back to the passage and reconfirm the answer, you can't do that for main theme passages, main theme type questions. अगर main theme के लिए आपको पूरा passage फिर से पढ़ना पड़ रहा है, तो मेरा recommendation उस passage को वहीं छोड़ दो। आपको एक बार में समझ में नहीं आया main theme, आप दोबारा पढ़ के टाइम वेस्ट करेंगे अपना वहां। So अगर आप एक passage solve कर रहे हैं, look at a question and categorize it into the different types that I'm discussing in the class today, and accordingly use the approach that I'm teaching you. For a factual question, referring back is okay. For an inferential one, for a tone-based question, title-based question, theme-based question, referring back not allowed. Does that make sense, everyone? Send me a thumbs up very quickly. मुझे कोई बात ही नहीं कर रहा है। This is a monologue that's happening. कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। जस्ट एक बार बता दो मुझे कि हाँ मैम समझ में आ रहा है, मुझे, मैं ग्रास्प कर रहा हूं ये चीजें, मैं अप्लाई कर सकता हूं ये चीजें। बता दो एक बार जल्दी से, आ रहा है ना सबको समझ में? ऑल्सो हिट द लाइक बटन इफ यू हैवंट डन दैट येट। थोड़ा सा ये गुरु दक्षिणा हो जाती है मेरे लिए, a little boost to continue with the remaining half. आ रहा है, चलो समझ में। Let's move on with the next kind of question, but I think before that, we have a 3-day free trial going on our app. So if you still haven't registered for our program yet, you can take a 3-day free trial. You can access everything that's there on our app for free for 3 days. N number of mocks, N number of classes you can access. You can download these classes, videos, PDFs, tests, notes, all of that for free for 3 days. Wait, किसका कर रहे हो? जल्दी से कर लो 3-day free trial and then you can enroll yourself for our classes very, very soon. आगे चलते हैं। स्टाइल एंड टोन बेस्ड क्वेश्चन, ये एक सबसेट है। किसका? ये है मेन थीम का सबसेट। अगर इसका आंसर आ गया तो ये तो गारंटीड आ ही जाएगा। अगर इसका आंसर नहीं आया तो भी इसका आंसर आ सकता है। इसका मतलब स्टाइल और टोन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डू यू वांट क्लासेस ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द ऑथर, या कौन कौन से टाइप के टोन्स होते हैं, मेंडेशियस का मतलब क्या होता है, कॉन्डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, ब्लैकनिंग का मतलब क्या होता है, अप्रिशिएटिव का और सार्कास्टिक का और सार्डोनिक का मतलब क्या होता है? डू यू वांट अ क्लास ऑन दैट टोन ऑफ द ऑथर? मैम अगर पैसेज समझ नहीं आ रहा तो अल्टरनेटिव ट्रिक क्या है उसको समझने का बताती हूँ अनन्या। ओके, सो सर्वेश, आलोक एंड एवरीवन हु वुड वांट अ क्लास ऑन टोन ऑफ द ऑथर, डेट बता दूं एग्जैक्टली कब लूंगी टोन ऑफ द ऑथर की क्लास। सो मेरी टोन ऑफ द ऑथर की क्लास होगी, जस्ट अ मिनट, दैट इज गोइंग टू बी ऑन 25th नेक्स्ट वीक। नो, इट्स राइट हियर, 25th को। मेक श्योर यू वॉच दैट सेशन लाइव, ताकि आप ऐसे जैसे अनन्या ने क्वेश्चन पूछा, आप क्वेश्चंस पूछो हैंड टू हैंड और आपको उसमें क्लैरिफिकेशन हो। ठीक है, तो सेव कर लेना 25th को 5 PM फर्स्ट क्लास ऑन टोन ऑफ द ऑथर। नेक्स्ट वीक एक क्लास और लूंगी, क्वेश्चंस लेके आऊंगी बहुत सारे ना। अनन्या का क्वेश्चन है मैम अगर पैसेज समझ में नहीं आ रहा तो उसका अल्टरनेटिव ट्रिक क्या है समझने का? देखो अनन्या, अगर आपने टाइम इन्वेस्ट कर दिया एक पैसेज को पढ़ने में और फिर भी आपको वो समझ में नहीं आ रहा, तो पहली चीज जो आपको नहीं करनी है वो है रीड। हम ये नहीं कर सकते हैं बिकॉज क्लैट इज अ टेस्ट ऑफ योर स्पीड। आप एक पैसेज को एक बार पढ़ने से ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, इस बात को फिक्स कर लो अपने माइंड में। तो अल्टरनेटिवली मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पूरा पैसेज तो नहीं छोड़ूंगी। उस केस में आप हमेशा आइडेंटिफाई करेंगे ये टाइप का क्वेश्चन, इसको मार्क करके आएंगे आप जरूर। 5 में से एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर होगा डायरेक्ट या फैक्ट बेस्ड। ऑल्टरनेटिवली टोन ऑफ द ऑथर क्वेश्चन भी एक बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट होता है। मैं बताऊं क्यों?
क्योंकि जैसे ही आपने ऑथर पूरा पैसेज समझ में नहीं आया ऑथर क्या बोल रहा है, हाँ लेकिन ऑथर ने थोड़ा नेगेटिवली तो बोली है बार बार बात, तो मुझे ये पता है कि टोन तो नेगेटिव है। तो अगर आप 4 में से 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पाते हैं ना, आपको रिस्क लेना चाहिए वहां पे। सो टोन बेस्ड क्वेश्चन भी है जो आप मार्क कर सकते हो। दैट मीन्स 5 में से अगर आप 2 क्वेश्चन भी मार्क कर लेते हैं एक ऐसे पैसेज में जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया, इट्स अ विन विन फॉर यू। सो इफ यू थिंक there are chances that you might not understand a passage completely, अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आप कमजोर हैं उसमें, हमेशा पेपर स्टार्ट करने से पहले 5 पैसेज को एक बार देख लो 10 सेकंड लगा के कि ये क्या क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा स्टोरी टेलिंग है तो मैं सबसे पहले उठाती हूँ स्टोरी टेलिंग, क्योंकि मुझे पता है ये मैं गारंटीड 100% करेक्ट करने वाली हूँ। या फिर अगर कोई पैसेज कॉमर्स पे है, क्योंकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट रही हूँ, मैं जरूर उठाऊंगी वो पैसेज, क्योंकि मुझे पता है मैं वेरी लाइकली वो सारे पैसेज करेक्ट करने वाली हूँ। सो उस केस में 5 में से 4 पैसेज तो आप चूज कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल है। इस 5वें में अगर आप 2 क्वेश्चन भी मार्क कर देते हैं आउट ऑफ 5, वो आपके लिए विन विन है। ओके और पूजा का क्वेश्चन, इफ यू स्टक बिटवीन 2 ऑप्शंस प्लीज टेक द रिस्क। आपकी विनिंग के चांसेस 50% हायर है वहां प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, बिल्कुल रिस्क लो और मार्क करो उनको। एक बार मॉक्स में पूजा इनको अप्लाई करके देखो एंड सी कि आपका गट कितना स्ट्रांग है। ठीक है, गट फीलिंग अगर थोड़ी सी भी स्ट्रॉन्गर, थोड़ी भी मेहनत करोगे ना पूजा, 90% ऑफ द चांसेस यू विल फाइंड योर करेक्ट आंसर। अगर कहीं गलत हुआ तो आपको एनालिसिस तो करना पड़ेगा कि क्यों गलत हुआ, रीजनिंग क्या यूज थी। रीजनिंग फॉलो करोगे तो नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट नहीं करोगे। सो टेक द रिस्क, मार्क करो आंसर्स। गलती हुआ तो उसको एनालिसिस करके देखो कि अच्छा मैंने इस कारण से उसको एलिमिनेट नहीं किया, मुझे ये पॉइंट ढूंढना चाहिए था। I hope that makes sense. Pooja, Alok, Ananya, all of you. So, we are there on type 3 question. Style and tone based. कितने frequently आते हैं? Easily 3 से 4 question आ सकते हैं 25 में से आपके एग्जाम में। बहुत आसान है, आपको सिर्फ इन वर्ड्स के मीनिंग याद करने हैं। 25th का I'm going to have a class on tone based question, style based question. अटेंड कर लेना, सॉल्व हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये क्वेश्चन, बहुत आसान होता है। पूरा पैसेज नहीं पढ़ोगे तो भी टोन निकाल सकते हो, तो भी स्टाइल निकाल सकते हो। आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझे कौन सी लाइंस में टोन ढूंढनी है, कहां विजिबल होती है टोन, किस तरीके के स्टेटमेंट में विजिबल होती है, उतना आ जाएगा। टोन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। गेट योर कंसेप्ट्स क्लियर हियर, वर्ड्स की मीनिंग याद करो एंड वॉइला यू गुड टू गो। कैसे लगते हैं क्वेश्चंस? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोन ऑफ द ऑथर? द पैसेज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, or passage can be categorized as a descriptive one, an informative one, an analytical one. Passage की क्या कैटेगरी है वो इवेंचुअली आपको स्टाइल और टोन ही पूछ रहा है। Oh yes, Lalita, I'm going to do that. Absolutely. Thank you for reminding me. I try to talk bilingually though because if a question comes to me in Hindi, then automatically the answer comes in Hindi. But I'll make sure I speak in English more. So, do you understand how would these tone-based questions look like? They would look like these. Attitude of the author, again is tone. Category of the passage can be described as, all of these are either asking you, these two are style and this is tone. Difference between style and tone we're going to be doing on 25th, so don't miss out on that. Then we have these. I think this is the most commonly asked question. Maximum number of questions in CLAT, in AILET, out of 25 will fall into this category. Most of them are going to be inferential. What exactly will an inferential question ask you? In a layman term, if a paragraph is written, what else could this paragraph mean? If a line is highlighted, what else could this line mean? Can I rephrase the paragraph into another set of words? Can I rephrase this line into another set of words? These another set of words are inference. Okay. Also, guys, if you're watching me live, yes, a very important one. In the entire month of September, I am going to be doing rapid fire with you. Excited much? You want to solve questions back to back, cut. So, question, inference, फिर main theme, फिर tone, फिर direct questions. You want to do that with me? Solving tons of questions. Because we've taken many theoretical classes, but I think now is the time to solve many questions. If you want to do that with me, make sure you comment under the video after the class ends.
It needs a lot of hard work from my side making questions, but it comes with a cost. The cost is you commenting under my video. And if I have a good like 5 comments, I'll bring these questions for you. So, indirect inferential questions. They just ask you to process the passage and draw something out of it. Whatever you draw is an inferential answer. Approach to it. While you read, learn to read between the lines. What is reading between the lines? Looking at the statement and thinking, अच्छा, इसका और क्या मतलब हो सकता है? What else could this line mean? So, अगर मैंने बोला it's raining outside, what else could this mean? Probably it's monsoon. Probably, this is only probably, right? Not certain. Probably I can't go out. Probably I'll be wet if I go out. All of these are probable inferences. If a line is written, what else could it mean? Is inference. They might look like which of the following is true or false. True or false could also be direct or fact-based questions. They could also be inference-based questions. But it's very, very easy to differentiate looking at the options. So here, just remember, you know if exactly where the answer is, refer back. Like which of the following can be inferred or cannot be inferred. If you know where it is, you can always refer back. But if not, your reading style needs to be in depth. That is, when you read an extract, read it with more attention, processing the set of words. That's what needed from you when you solve an inference-based question. So, fourth category of question, the most important one, inferential question. Acha, एक चीज और, Alok and everyone else. Nitika, let me give you, Android gaming, that's right. Everyone, इस बात पे ध्यान दो, जो आपके पास inferential questions हैं, there are 2 tricks that always help us find the correct answer here. The first trick is figuring out what is the main theme. Main theme आपको बहुत बार inferential questions के option eliminate करने में help करती है. तो प्लीज इस पे जरूर काम करो. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, इसका आंसर बिल्कुल निकल सकता है इसके थ्रू. दूसरा, अपार्ट फ्रॉम मेन थीम, वर्क ऑन एक्सट्रीम वर्ड्स. What are extreme words? Only, all, except, definitely, certainly. ये extreme words होते हैं. Inferential questions में extreme words भी बहुत बार use होते हैं. Okay? It's nothing Android. It's just another way of saying inferential question. Indirectly एक ही बात को दूसरे words में बोलना. Okay? So, while you work on inferential questions, I will highly recommend you work on these 2 ways. Knowing the main theme, और कौन सा option main theme के against जा रहा है, वो तो certainly infer नहीं हो सकता passage से. Find that out. Also, look for extreme words. Easy to eliminate options through that. Next category of questions. But before that, we've launched a test series. Dude, बहुत कम time बचा है. Test series comes for very nominal cost. And you get loads of tests here. We'll be analyzing many mocks on our YouTube channel. They'll be useless for you if you don't attend our test series. Make sure you register yourself right away. That's the number of our counselors. Call them and know more about our test series. Vocab-based question. आसान है क्योंकि ये आते हैं कॉन्टेक्स्ट से. कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? एक वर्ड हाईलाइटेड है, सिनोनिम या एंटोनिम बताना है. हाईलाइटेड वर्ड का मतलब नहीं पता, कोई बात नहीं, पैसेज में जाएंगे, देखेंगे कहाँ लिखा हुआ है वर्ड, उसी लाइन को पढ़ेंगे और ये फिगर आउट करेंगे कि ये वर्ड पॉजिटिवली यूज्ड है या नेगेटिवली. कॉन्टेक्स्ट से निकालेंगे. अगर पॉजिटिवली है तो सिनोनिम भी पॉजिटिव होगा. ऑप्शंस में देखो कितने पॉजिटिव वर्ड है, ऑप्शन एलिमिनेट करो और मार्क कर दो आंसर. तो इसका आंसर या तो डायरेक्टली पता होगा और नहीं पता है तो रेफर बैक करना इस क्वेश्चन के लिए भी मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ. इनफैक्ट मैं आपसे अर्ज करती हूँ दैट यू रेफर बैक, बिकॉज बहुत सारे वर्ड्स की कंटेक्चुअल मीनिंग चेंज हो सकती है. लिटरल मीनिंग कुछ और हो सकती है, बट कंटेक्चुअल मीनिंग. कल मैंने क्लास में एक एग्जांपल दिया दैट मॉनसून दिस ईयर वाज ल्यूकवार्म. अब ल्यूकवार्म का लिटरल मतलब तो होता है गुनगुना, नॉट वेरी हॉट, नॉट वेरी कोल्ड.
light warm, slightly warm. But then contextual meaning तो नहीं है lukewarm. Contextual meaning is it was not strong enough. It was pretty lower than what was expected, right? So always refer back to the passage. You have to understand the contextual meaning. Okay? So always go back to the passage and find out the context. Referring back here is highly, highly recommended. Now, yes, Android. These are extreme words. Now, Swapnil says, how to solve can be deduced from the passage. These are inferential questions, Swapnil. Your approach has to be the same for inferential questions. You have to process the data in the passage and draw something out. Conclusion questions are also mostly inferential questions and CR-based questions. Although CR-based questions are few in English, but they sometimes may come. Your approach has to be following the basics of critical reasoning. So with your question, inference approach is what is needed. Next type of question, grammar-based question. ये दो तरीके से आते हैं. Either they ask you the figure of speech or they ask you a fill-in-the-blank type question. So A लगाना है, and लगाना है, fill-in-the-blank type question. सबसे ज्यादा ये आता है. कितना frequently आता है? 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं out of 24. स्कूल में कर रहे हो ना फिगर ऑफ स्पीच, कितनी देर लगेगी? 2 दिन भी दोगे ना, फिगर ऑफ स्पीच मास्टर कर सकते हो. Barely 2 days. रेनन मार्टिन उठाओ, फिगर ऑफ स्पीच की लिस्ट है, रट लो, 2 दिन में याद हो जाएंगे. 3 से 4 मार्क्स आपके पॉकेट में होंगे. ऐसे ही बिट बाय बिट मार्क्स एक्यूमुलेट होते हैं, राइट? तो अभी भी नहीं किया ना ये टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो प्लीज इसको कर लो. दैट्स अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन दैट माइट कम इन द एग्जामिनेशन. सो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में इधर फिल इन द ब्लैंक आएंगे या फिगर ऑफ स्पीच आएगा. और फिगर ऑफ स्पीच तो बहुत लाइकली आएगा AILET में भी, CLAT में भी. Pick up your Renan Martin, pick up your school textbooks, eat up your teacher's head, ask them questions कि यहाँ क्या figure of speech हो सकता है. Most of our mock tests will have at least 2 questions on figure of speech. Those 2 marks will also be in your pocket if you do them. नहीं किया है फिर भी तो थोड़े दिन वेट कर लो, क्लास ले लूंगी उस पे भी एक. So which of the figure of speech is used and fill in the blank. That's going to be your approach here. अच्छा, we have a free all India open mock happening. The window starts on 25th. Closes on 3rd of September. Fees free. Register yourself right away. The link is there in the description box. ले लो mock. क्यों? क्योंकि इससे आपकी standing आपको पता चलेगी amongst thousands of other kids. आपके कितने marks आ रहे हैं, आप कितना स्कोर कर रहे हैं, आपको कितने बच्चों को पीछे छोड़ना है NLS जाने के लिए, नालसार जाने के लिए, कोलकाता जाने के लिए. Take the mock tests, register yourself right away. The link is there under my video. अनन्या, अगर आप क्लास में आते हो तो क्लास में पूछ लो, नहीं तो एंड्रॉइड गेमिंग मेन थीम. यूजुअली आपको एक लाइन हाईलाइटेड दी हुई होगी, उसमें तो उससे फास्टर कुछ हो ही नहीं सकता, वो लाइन आपको हार्डली पढ़नी है. बट अगर पूरे पैसेज में आपको मेन थीम ढूंढना है, आपको फिगर ऑफ स्पीच ढूंढना है, वो आपको मेन थीम के थ्रू ही आ सकता है. How many times we can give this? Only once. कितने दोस्तों को दिलवाना है ऐसे? लोग. अच्छा. So also we've launched a new comprehensive course for people who are targeting 2024 CLAT. That's the number of our counselors. Call them and know more about the details of the batches. That was all for today. A quick revision. What are the types of questions we discussed? जो आएंगे एग्जाम में. Main theme, direct, tone, inference based question, vocab और grammar. 6 questions, 24 marks in the pocket. Sounds easy है ना मैम? आपको तो easy लगेगा मैम, हमारे लिए difficult है. I know that. I've been teaching for the last 12 years. पता है मुझे. Bit by bit वो भी आएंगे 24 marks भी. But in September, if you wish that I take rapid fire quizzes, question solving with you more than I teach theory, you have to comment under the video. I'll be waiting for your comments. If I have 5 comments asking me to take these classes, I'll be ready to do that. Make sure you do not leave the class without subscribing to our channel and hitting the like button. Follow us on our social media handles, Instagram, Facebook, Telegram, and our app on Google Play. That's going to be all for today, everyone. I shall see you very, very soon. Have a very good evening. I have a class on 25th on tone of the author, all right? So don't miss out on that. Now, how much time we should give to solve a passage with question solving? Per question, you have 1 minute. On an average, Swapnil. But आप अपने आप को कैटेगराइज करिए कि आप स्ट्रॉन्ग है या वीक है या एवरेज है. और प्लीज जो मॉक 8 एनालिसिस का वीडियो था जो हमने लिया था,
मेरा लास्ट सेक्शन था, उस सेक्शन को प्लीज फर्स्ट हाफ एन आवर देख लो। मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया कि पर क्वेश्चन कितना टाइम देना चाहिए, आपको कितना टाइम देना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और कौन से क्वेश्चन आपको मार्क करने चाहिए। सो ऑल ऑफ यू, अगर आपने नहीं देखे ना वो लास्ट के हाफ एन आवर, तो देख लेना उसको। कौन सा वीडियो है वो? हमारे यूट्यूब चैनल पे सेव्ड है, मॉक 8 एनालिसिस का। क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं कराई है मैंने, सिर्फ वही बताया कि क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, इंग्लिश में कितनी देर देनी चाहिए और कौन से क्वेश्चन मार्क करने चाहिए आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग। तो देख लेना। मैम बायजूस के ऐप पर ही देखी थी क्वेश्चन में, वहां पे फिगर ऑफ स्पीच समझ नहीं आई थी। क्लास में डाउट पोर्टल पे डाउट रेज कर दो, आई हेल्प यू। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, हैव अ वेरी वेरी गुड डे, गॉड ब्लेस यू।